उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। खुश तो बहुत Once the language of the masses. बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, Now slipping into obscurity. Why? Let's start from the start. इस बेहतरीन जबान के पीछे एक बेहतरीन शहर है, दिल्ली। Urdu grew up in the lap of old Delhi with the start of the Sultanate period in the 12th century. These people came to Delhi after crossing Khyber and spoke various languages, from Turkish to Persian to Pakhtun. Now, the high commanding officers of the Sultanate, including the king, spoke their native languages, but their armies were local, and hence they spoke local dialects like Khadi Boli, Rohelkhandi, and Bundelkhandi. Hence, there was a gap in communication. Now, due to this, a lingua franca was created in the army camps of Delhi, say a common language. It had the grammar, structure, and syntax of the local Indian languages, but largely drew its vocabulary from Persian, Turkish, and even Sanskrit. This language came to be known much later as Urdu. Back then and through the years, though, it was called various names, but we'll come to that later. For the sake of this documentary and for our clarity, let's stick to the name Urdu. Back to the origins. Army camps were not the only place where this language was developing. Another major location was the bazaars. Delhi's bazaars was a melting pot of people from all nationalities, cultures, communities, and hence, of course, languages. Traders and merchants from Iran, Turkey, Afghanistan, and all over the world came to do business here. But they didn't have a language to communicate or even bargain in. Hence, they adopted the common language Urdu as the language of trade. This is where we see Persian words coming to the dictionary. Words like girah, which means knot, which we use today for salgirah. Even other words like tarazu, wazan, gaz, all of these came into the vocabulary. The final mixing happened in poetry or shairi, something which the language of Urdu is famous for. Nizamuddin Aulia. For those of you who do not know him, this is his tomb Jordan is looking at in the song Kun Fayakun in Rockstar. He was a famous Sufi saint of the Chishti order in the 13th century and a great poet above all. He was the one who told his disciple Amir Khusro, यहाँ के लोगों की ज़बान में शायरी करो ताकि हमारी बात उन तक पहुँचे. That is when Amir Khusro, who himself was a court scholar and a noted poet of the Delhi Sultanate, started writing his poetry in Urdu and later came to be known as the father of Urdu literature. Hence, this language grew and developed on multiple fronts. In bazaars, army camps, Sufi shrines, places of work, and became the language of the masses. Awam ki zaban. तो उर्दू ज़ुबान की ख़ासियत ये है कि ये बहुत शीरीं, बहुत नर्म, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है जिसको कहना चाहिए. इंग्लिश में जो स्वीट वर्ड हम यूज़ करेंगे, दैट्स एग्जैक्टली डिस्क्राइब उर्दू. उर्दू जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह फैली कि उसने जो भी उसका एक कॉमन वोकेबलरी की एक उसके पास एक रिजर्वायर था, वो दूसरी लैंग्वेजेस से लगातार बोरो करती रही. The Hindi film script, as we call it, it has songs as a very natural and integral ingredient to it, where Urdu lends itself rather well to it. Now, even if you see something like, say, Sahir Saab wrote, "Kabhi kabhi mere dil mein khayal aata hai," वगैरह. Now, "Kabhi kabhi" is also Urdu. Mere dil mein khayal aata hai. Now, you can't say yada kada or whatever, mere hriday mein vichar aata hai, because it doesn't lend itself to poetry. So there is a natural inclination towards that.
मीर तकी मीर भी हैं, गालिब भी हैं, मोमिन भी हैं, दाग दहलवी भी हैं, ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़ हैं। तो ये सारे पोइट्स ने एक बेसिकली पूरे नॉर्थ इंडिया को, क्या पूरे इंडिया को ही इम्पैक्ट किया अपनी पोइट्री से। और उर्दू बहुत ही ज़्यादा, एक तो यहाँ पे सल्तनत थी, तो दरबार की वजह से भी शायरों को बहुत ज़्यादा उनको इज़्ज़त दी जाती थी, उनको हर तरीक़े से उनका बहुत ज़्यादा मान किया जाता था। तो उर्दू जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करी। उर्दू में कभी ये नहीं था कि ये शब्द बाहर का है। बिकॉज यू आर बोरोइंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस यू बिकम रिच। तो मुझे लगता है कि उर्दू शायरी या उर्दू ज़ुबान में आप आते एक मेडिटेटिव पोज में आ जाते हैं। जैसे एक मीर का शेर है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। मीन्स गो ईजी एंड स्लो इवन एज यू ब्रीथ। एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इज दिस ग्लासवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये उर्दू ज़बान अपने आप में हिंदुस्तान की तहज़ीब, हिंदुस्तान के कल्चर को शुरू से अपने अंदर समोए हुए थी और वही कल्चर चल रहा था। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हैज़ ग्रोन एंड डेवलप्ड विदाउट ऑफिशियल पैट्रनेज। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन, उसको तो कोर्ट की सपोर्ट हासिल थी ना, उर्दू का हासिल नहीं थी। इट ग्रू प्राइमरली थ्रू द मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स and the mixing happens at the level of the people. इस ज़बान का जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो है अवामी और मोहब्बत की ज़बान है ये। मेरा तो ख्याल ये है कि जो शायरी क्यों मकबूल है उर्दू की, इसीलिए मकबूल है कि उर्दू में जो डिक्शन है वो मोहब्बत के जज्बात से भरे हुए डिक्शन है। ये वो शब्द हैं जो हमारे दिलों को छूते हैं। तो ये उर्दू दिलों की ज़बान है, उर्दू दिलों को छूने वाली ज़बान है। दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ कि एक लैंग्वेज को एक रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाए। पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको प्रोपेगेट किया गया। असल में महात्मा गांधी चाहते ये थे कि हिंदुस्तान की जो सरकारी ज़बान हो या हिंदुस्तान की जो ज़बान हो वो हिंदुस्तानी ज़बान हो। और हिंदुस्तानी ज़बान का मतलब है हिंदी और उर्दू दोनों ही, चाहे आप उसको उर्दू स्क्रिप्ट में लिखो या देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखो। पार्टीशन के बाद से उर्दू के साथ सौदेला बर्ताव हुआ है, हर लेवल पर हुआ है। No, because it's considered an Islamic language, which is a joke completely. I mean, these ignorant people have no idea of where Urdu has come from and what the influence of Urdu is on not just our Hindi but also various other languages, including Marathi, Gujarati. There are a lot of Urdu words which have come in. कि पाकिस्तानियों ने अपनी सरकारी ज़बान उर्दू बना दी, जबकि वहाँ पंजाबी, पश्तो एंड सिंधी वाज द मोर कॉमन लैंग्वेजेस एंड उर्दू वाज कॉमन इन नॉर्थ इंडिया हियर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ये एक उड़ गई बात कि ये उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। और उसी पॉलिटिकल जो फ़िरक़ावाराना सियासत जिसे हम कहते हैं, कॉम्युनल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसी की विक्टिम उर्दू बनी। जब मुल्क बटा, आज़ादी की तहरीक के बाद, आज़ादी के आंदोलन के बाद 47 में जब हम आज़ाद हुए तो सिर्फ मुल्क ही नहीं बटा, फ़िरक़ा परस्त सियासत ने हमारी ज़बान को भी बांट दिया। अदरवाइज़ उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की ज़बान है। और नॉर्थ में ज़्यादातर जितने भी लोग हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने इस्लाम को समझने के लिए उर्दू भाषा में ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। पूरे नॉर्थ में, जिसको आप काउ बेल्ट कहते हैं, जिसको नॉर्थ इंडिया कहते हैं, जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को समझने के लिए बुनियादी तौर पर उर्दू जानते हैं। इसलिए इस इलाके के जितने मुसलमान हैं आपको उर्दू बोलता हुआ नज़र आ जाएंगे। लेकिन आप बंगाल में चले जाइए, वहाँ का मुसलमान उर्दू नहीं जानते। अच्छे लोग हैं वो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उर्दू ज़बान पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेख्ता प्रोग्राम करता है मुख्तरी, तो उसमें गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, उर्दू को समझना चाहते हैं, उर्दू को सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी में बोलते हैं तो उसमें बहुत अच्छा बोल देते हैं ये, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है समझने के लिए। अब ये है कि उर्दू लैंग्वेज हर कोई बोलते हैं, ये थोड़ा इजी है। और हिंदी अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए तो हर किसी को परेशानी होती है, आप भी नहीं बोल पाओगे, मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। और इस ज़बान ने सदियों तक हिंदुस्तान की विरासत को, तारीख़ को अपने दामन में संजोगा है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहें,
आपको खुसरो पढ़ना पड़ेगा, आपको कबीर पढ़ना पड़ेगा, आपको तुलसी पढ़ना पड़ेगा, आपको जायसी पढ़ना पड़ेगा, रहीम पढ़ना पड़ेगा, वली पढ़ना पड़ेगा, कुतुब शाह पढ़ना पड़ेगा, मीर गालिब सब पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े हुए आप हिंदुस्तान को समझ ही नहीं सकते। हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में सबसे पहले जो एंटी ब्रिटिश पोइट्री लिखी गई वो उर्दू में लिखी गई। प्रेमचंद की सारी कहानियाँ, प्रेमचंद के सारे नावल उर्दू ज़बान में लिखे गए थे। बाद में उन्होंने कुछ नावल हिंदी में लिखे और तर्जुमा किया, यानी ट्रांसलेट किया उर्दू के नावलों को, उर्दू के शॉर्ट स्टोरीज को। Vishal Bhardwaj. Vishal comes from a tradition where he has learned also Urdu. He is comfortable with that. He has familiarized himself with Urdu poetry, Urdu ghazals, शायरी etc. हमारे मनमोहन सिंह जी जो 15 अगस्त पे जब स्पीच देते थे तो उर्दू में लिखी हुई होती थी उनकी। हाँ, मोटे मोटे खत में लिखी होती थी। मज़हब की कोई ज़बान नहीं होती है, ज़बानें आज़ाद होती हैं, ज़बानों का इस्तेमाल मज़हब वाले करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिक्स हुई जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी, एंड वी फेल फॉर इट, और यहाँ पर बदमाशी हुई। फोर्ट विलियम्स कॉलेज, देयर इज दिस जेंटलमैन, हिज नेम इज जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट। तो वो जब कलकत्ता पहुँचा तो उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो था फोर्ट विलियम कॉलेज का, उनके साथ उसने एक मीटिंग की। यू विल हैव टू गेट टू लर्न द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल इफ यू हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ रूलिंग दिस कंट्री। तो पर्शियन से काम नहीं चलेगा, और उसने एक ग्रामर तैयार किया, द ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। और बदमाशी ये हुई कि उसने 4-5 मुस्लिम स्कॉलर्स को कलकत्ते बुलाया और उनको उसने अंग्रेजी की किताबें दी और कहा कि इनको ट्रांसलेट करो। He asked the Muslims to write the translation in the Persian script and write the Hindus to write their translation in the Nagari script. और उसने एक का नाम हिंदी और एक का नाम उर्दू रखा। These languages were created in Fort Williams College in the 19th century. Actually, Hindi and Urdu are more similar than we think. Let's see if you can differentiate between them. So there are 10 words on screen currently. Take a few seconds and categorize them between what you think are Hindi and what you think are Urdu. Right. Well, the thing is that these are actually all Urdu words. And these are their Hindi counterparts. We use Urdu in our daily lives way more than we think. We're just not aware of it. Where it seems like that the culture is on a receding scale, but still they are able to retain it. बगैर उर्दू के फिल्मों का कारोबार एक दिन भी नहीं चल सकता है, चाहे वो नगमा निगारी हो या डायलॉग राइटिंग हो, उसमें एक दिन भी नहीं चल सकता है। तो ये क्यों? ये इसके अंदर जो है इल्म का एक ख़जाना छुपा हुआ है। आज भी मैं अपनी रूहानी और जहनी सुकून के लिए उर्दू ज़बान को ही पढ़ता हूँ। होते जा रहा है, ये पक्का है। It's a commercialized industry. It caters to an audience. The day it begins to feel that people are not able to understand, they will begin to change that because it depends upon what they call the consumer. उर्दू के अंदर जो अभी भी उसकी अपनी ताकत है, जो पॉपुलैरिटी है उसकी, जो मकबूलियत है उसकी, वो सिर्फ इसलिए है कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के आवाम की ज़बान रही है, आम लोगों की ज़बान रही है, और आम लोगों की जो डिक्शन है, जो रोज़मर्रा है, आम बोलचाल है, उसमें उर्दू शामिल है। हमारा तजर्बा ये है कि पब्लिशिंग के ताल्लुक से हम दुनिया के हर कोने में उर्दू ज़बान की किताबें भेजते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह तो जाती हैं। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उर्दू की ज़बान की किताबें लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। When we have these festivals, Jashn-e-Ikhta this time, we had 3 lakh people who came, and it was covered by New York Times also, which was a big thing. अब उर्दू का एक सेंटर नहीं है, अब हज़ारों सेंटर हैं। तो हज़ारों सेंटर होने का मतलब यह है कि इसका काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लोग इसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जिस कंट्री के अंदर उर्दू की एक बस्ती नहीं बसती हो। आप हमारा रजिस्टर उठा के देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के उसमें आपको ऐसे छात्र मिल जाएंगे। जापान से आते हैं हर साल। अभी जापान के 6 हमारे छात्र हैं जो उर्दू सीखने आए हुए हैं। कि आप ज़ुबान से 1000 दुश्मनी कर लें,
लेकिन वक्त आएगा तो मीर और गालिब का शेर तो पड़े ही। ये देखिए, ये ज़बान कभी मर नहीं सकती, क्योंकि जिस ज़बान में इतना वेरिएशन है और इतना लिटरेचर मौजूद है, वो ज़बान कभी मर नहीं सकती। यही वजह है, ये जब से आई है, जब से ये पैदा हुई है, आज तक ये अपने पूरे आबोताब के साथ और अपने पूरे शबाब के साथ ये जिंदा है और चल रही है, लोगों के दिलों में घर करी हुई है। तो ये जो उर्दू की कशिश है, जो इसकी ताकत है, वो इसको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये कहने के बावजूद I do see actually a gradual but maybe steady reduction. Yes. हो रहा है कि now willy-nilly it has gotten reduced to a language जो मुसलमानों की ज़बान बना दी गई। पहले जो फिल्म के टाइटल आता था, फिल्म का टाइटल हमेशा तुमको पता है, हाँ, अंग्रेजी, हिंदी और फिर उर्दू में। उर्दू का बंद कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर ज़बान की जो उसके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ अता करे, उसको बचाए, उसको सेफगार्ड उसको दे, और उसके प्रमोशन में जो एक डेमोक्रेटिक रोल है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अदा करे सरकार। जो स्कूल लेवल पे कंपलसरी किया जाए पढ़ने के लिए, जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दाई लेवल पे बच्चों को ऑफ़र किया जाए कि भाई आप उर्दू भी पढ़ सकते हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो और वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। जो प्रपोजल हमने पेश किया, गवर्नमेंट ने सोचा, और जैसे मैंने कहा कि ये क्या बात है कि हम उर्दू पाकिस्तान लिखते हैं, है ना, हम उर्दू इंडिया का नहीं कर सकते। आप कंप्यूटर खोलिए तो आपको उर्दू इंडिया में मिलेगा, उर्दू भारत मिलेगा। One doesn't see a too bright future for this language unless the youth of this country, जिनमें से बहुत सारों को ये ज़बान पसंद है, वो खुद पढ़ना शुरू करें। This, firstly, the advent of English. They feel that that's the language of the young people because that's how you people speak. उसमें एक ग्लिम्स दी जाए यंग जनरेशन को उर्दू की, जिससे कि उनको एक टेस्ट लगे उर्दू का, एक मज़ा आए। और जब किसी चीज़ का मज़ा आता है तो आप उसको और जानना चाहते हैं, उसकी निटी-ग्रिटीज़, उसके न्यूएंसेस, ताकि आप उसमें और अब्जॉर्ब कर सकें। स्टार्टिंग की 0 की आती है उर्दू सीखने के लिए, उसके बाद ये है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। All the writers decide individually कि भाई आप लिख रहे हो तो उसका जो प्रोपोर्शन जो है थोड़ा सा उर्दू का, it sounds nice, बढ़ाते जाओ। Everything has to evolve. So from books and from pages, it has to evolve towards technology. रेख्ता वेबसाइट के ऊपर सारी पोइट्री देवनागरी और उर्दू के साथ साथ रोमन स्क्रिप्ट में भी है। अब ये रेख्ता के जो प्रोग्राम होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों ने, जिनकी मदर टंग उर्दू नहीं है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। सो दैट इज़ द ओनली होप। एक ऐसी बेहतरीन ज़बान जिसको सुन के दिल खुश हो जाए, उससे उसका दर्जा छीन लिया गया या उसे किताबों के पन्नों में समेटकर बंद कर दिया गया। गलती कहीं ना कहीं हमारी है। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रह गए। उर्दू, being as culturally rich and diverse, needs to be incorporated into our education system at an early age. To see the language prosper, we must preserve Urdu literature and its heritage. घूम फिर कर बात लोगों पे आती है। अगर लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे नहीं, तो उर्दू बीते हुए ज़माने की एक ज़बान बन के रह जाएगी। हमें नए उर्दू राइटर्स को पब्लिश करना होगा, इस लैंग्वेज को और एक्सेसिबल बनाना होगा, इसे रोज़गारी से जोड़ना होगा। दिस लैंग्वेज हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, फ्रॉम अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल टू द कोर्ट टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड इन द हार्ट्स ऑफ मैनी अक्रॉस द ग्लोब। नो डाउट कि उर्दू में आज उतनी ही काबिलियत है जितनी 200 साल पहले थी। हमारी गलती ये है कि हम उस काबिलियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। किसने कहा कि उर्दू शायरों की ज़ुबान है? उर्दू उसकी ज़बान है जो इसे अपनाए और उसकी भी जो उसे ठुकराए। ये हमारी और आपकी ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। शुक्रिया।